ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ PCS, PPSC, SSC, CGL, CHSL, ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। WhatsApp, Telegram, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸ਼ਨ IBPS RRB ਦੇ ਲਈ, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਚਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ MCQ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਚੈਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਚੈਸ ਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਚੈਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਇਹ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲੋਜ਼ੇਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ CBSE ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ IBM ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ? IBM ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ? IBM ਦੇ ਨਾਲ। IBM ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਫॉर ਕਲਾਸਿਸ 11th ਐਂਡ 11th ਔਰ 12th ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਅਹੂਜਾ CBSE ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਔਰ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ ਦੁਆਰਾ ਲਾ ਲੀਗਾ ਦਾ 34th ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਲਾ ਲੀਗਾ ਦਾ 34th ਟਾਈਟਲ ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ? ਵਲੇਰੀਅਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਲਾ ਲੀਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾ ਲੀਗਾ ਸਪੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਹੈ। ਲਾ ਲੀਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਹੈ? ਸਪੇਨ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ VK ਯਾਦਵ ਕੌਣ ਨੇ? ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਹੈ, ਨੌਰਦਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਨੌਰਦਰਨ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ 2023 ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੁਆਰਾ ਹੰਗਰੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 8ਵਾਂ ਹੰਗਰੀਅਨ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ UK ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ UK ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਬਲੈਕ ਲੀਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਕੈਂਪੇਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਟੋਨੀ ਸੀਵੈਲ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਜੇ ਕੱਕੜ। ਇਹ 2 ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਰੀਆਨਾ ਵਾਰਦੀਨਿਓ ਯੈਨਿਸ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਮੋਰਿਸਾਨਾ ਕੋਯੂਤੇ ਇਹ ਗੀਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਪਰਸਨਸ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੀਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2020 ਦਾ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ
नेशनस द्वारा। बेसिकली पहली बार यह 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਧਾਰਥ। ਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਧਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਧਾਰਥ ਨੂੰ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ MD and CEO ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ SBI ਕਾਰਡਸ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ। SBI ਕਾਰਡਸ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ MD and CEO ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 2020 ਇੰਡੀਆ ਆਈਡੀਆ ਸਮਿਟ। 2020 ਇੰਡੀਆ ਆਈਡੀਆ ਸਮਿਟ ਕਦੋਂ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਜ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੇਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿਦ USA। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ USA ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ USIBC ਦੁਆਰਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੁਆਰਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਤਿਕਾਰਮ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਤਿਕਾਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਓਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਗਾਂव ਇਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਪਸਾਖਾ ਇਨ ਭੂਟਾਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਭੂਟਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਓਪਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਗਾਂव ਔਰ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਾਖਾ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਸ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਾਇਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਦ ਐਂਡ ਗੇਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਅਨਇਮੈਜਿਨੇਬਲ ਟੈਰਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਦ ਐਂਡ ਗੇਮ ਨੋਵਲ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਐਸ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਾਇਦੀ ਦੁਆਰਾ। A book titled Singing in the Dark ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਸਚਿਦਾਨੰਦਨ ਔਰ ਨਿਸ਼ੀ ਚਾਵਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ G20 ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। G20 ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। नैक्सट है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। अगर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की गल करिए, इसने की कराया एक सैटअप की सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिज्म जिस दे अंडर की किया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सैल डेवलप किया गया। इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सैल 10 मैंबर्स का एक ग्रुप डेवलप किया गया जिसके हैड अपॉइंट किए गए हैं अंबेर दूबे जॉइंट सैक्रटरी ने एविएशन मिनिस्ट्री के। इन्हों इस क्लीयरेंस सैल का हैड अपॉइंट किया गया। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इन्हों द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की गई SC कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। नवीन रोजगार छतरी योजना नूं उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र ऐसी पहली स्टेट बनी है, फर्स्ट स्टेट जिसने ड्रोन्स का यूज़ किया है किस दे लई? एरियल सर्विलेंस एंड इंस्पैक्शन ऑफ हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइनस। कल भी आप डिस्कस किया कि जी पावर ट्रांसमिशन लाइनस ने और टावर्स ने इन्हां दी सर्विलेंस के लिए इंस्पैक्शन के लिए ड्रोन्स यूज़ किए जाएंगे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और ये इस काम करने वाली पहली स्टेट बनेगी। ठीक है जी। नैक्सट है उड़ीसा रिलेटेड दो न्यूज़ कल आप डिस्कस की कि मधु बाबू पेंशन योजना के अंडर ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी नूं ऐड किया गया है, जिस दे अंडर पेंशन दी जाती है बेसिकली 700 800 900 डिफरेंट पेंशन दी जाती हैं पर मंथ दियाँ। इसनूं स्टार्ट किया गया उड़ीसा द्वारा और इस ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी नूं ऐड किया गया। दूसरी न्यूज़ सी कि उड़ीसा द्वारा फ्लिपकार्ट के नाल पार्टनरशिप की गई, सिमिलर तरीके की पार्टनरशिप जिवें कर्नाटका ने की सी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए फ्लिपकार्ट के नाल, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए इसनूं किया गया। नैक्सट है मोनूमेंट्स आप डिस्कस कर रहे हैं। अज के अपने मोनूमेंट्स ने अकबर टॉम कित्थे है? अकबर की टॉम्ब है आगरा यूपी दे विच। अकबर मकबरा यानी कि अकबर की जिहड़ी टॉम्ब कित्थे है? आगरा यूपी दे विच।
बीबी का मकबरा कित्थे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र दे विच। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र दे विच। जामिया मिलिया दिल्ली दे विच। राजघाट कित्थे है? महात्मा गांधी सॉरी राजघाट की चीज़ है? राजघाट है महात्मा गांधी दी क्रीमेंट्रियम, यानी कि महात्मा गांधी जी दी जिहड़ी टॉम्ब कह सकते अगर आप मुस्लिम वर्ड की गल करिए तो टॉम्ब आ जाएगा। और किसान एक मैमोरियल कह सकते हैं किसान घाट, ये बनाया गया सी चौधरी चरण सिंह जी का। चौधरी चरण सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। बेसिकली अगर आप गल करिए इन्हों किसान घाट इसलिए किया जाता है, इन्होंने फार्मर्स के वैलफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया सी। अगर आप गल करिए इन्हों की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन एक डे भी ऑबजर्व किया जाता है, नैशनल फार्मर्स डे। बेसिकली दिसंबर के आता, आई थिंक 23 दिसंबर वाले दिन चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन नैशनल फार्मर्स डे भी ऑबजर्व किया जाता है, ये याद रखना है। नैक्सट आप चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश जावड़ेकर लॉन्चिज अ मोबाइल एप्लीकेशन कुरमा फॉर द कंजरवेशन ऑफ। प्रकाश जावड़ेकर, सब तो पहले प्रकाश जावड़ेकर कौन ने? ये अपने इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर ने। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट मिनिस्टर एक मिनिस्ट्री इन्होंने लवे ये है। दूसरी इन्होंने लवे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। इस तो इलावा हैवी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री का इन्होंने लवे चार्ज है। हैवी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री का भी चार्ज है, क्योंकि आई थिंक की नाम सी अरविंद सिंह गणपत इस तरीके का नाम सीगा, जिन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दिता सी। उन्होंने लवे हैवी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री सीगी और यह मिनिस्ट्री दे दी गई सी प्रकाश जावड़ेकर को। राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो। और कुरमा एप्लीकेशन लॉन्च की गई है टर्टल्स की रीहैबिलिटेशन के लिए। टर्टल्स की रीहैबिलिटेशन के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, कुरमा एप्लीकेशन। ठीक है जी, याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए वर्ल्ड टर्टल डे की, टर्टल डे की गल करते हैं। टर्टल डे भी आप डिस्कस किया मई के डिस्कस किया 23 मई को। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे ऑबजर्व किया गया। टर्टल रीहैबिलिटेशन सेंटर, एक टर्टल रीहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है इंडिया के। ये कित्थे बनाया जा रहा सी? टर्टल रीहैबिलिटेशन सेंटर बगलपुर बिहार दे विच। कित्थे? बगलपुर बिहार दे विच बनाया जा रहा है टर्टल रीहैबिलिटेशन सेंटर। इस तो इलावा अगर गल करिए एलीफेंट के रिगार्डिंग एक हॉस्पिटल बनाया गया सी, एलीफेंट क्लीनिक समथिंग इस तरीके का सीगा। ये कमेंट बॉक्स में दसना किहड़ी सिटी दे विच बनाया गया सी। सिटी भी और स्टेट तो चलो हर एक को पता ही लग जाएगा, अगर सिटी पता लग गई काफ़ी फेमस सिटी है। ठीक है, ये दसना। टाइगर्स का रिसेंटली डाटा रिलीज़ किया गया सी और इस डाटा के लिए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इंडिया ने, ये याद रखना है। लॉयन, एशियाटिक लॉयन कित्थे पाए जाते हैं? एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं गिर फॉरेस्ट के विच। गिर फॉरेस्ट कित्थे है? गुजरात के विच। राइनोज, वन हॉर्न राइनोज आप रिसेंटली डिस्कस करके हटे सी। वन हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं असम के विच। कित्थे पाए जाते हैं? असम, बेसिकली असम के काजीरंगा नैशनल पार्क के विच। काजीरंगा नैशनल पार्क के विच, ये याद रखना है। ठीक है जी। इस तो इलावा एक न्यूज़ होर डिस्कस कर लेने इत्थे टर्टल से रिलेटेड एक न्यूज़ इस करके इत्थे डिस्कस कर लेने। आप डिफरेंट क्वेश्चन नहीं बनाया। एक स्पैसीफिकली येलो कलर टर्टल देखा गया, येलो कलर टर्टल यानी कि पीला टर्टल देखा गया। काफ़ी पिक वायरल हो रही है सोशल मीडिया वगैरह पे। ये कित्थे देखा गया? किहड़ी स्टेट दे विच? क्वेश्चन सिर्फ इस तरीके पूछा जा सकता है कि यह किहड़ी स्टेट दे विच देखा गया येलो टर्टल। कित्थे देखा गया? उड़ीसा दे विच। बेसिकली उड़ीसा के बालासोर दे विच देखा गया। आप स्टेट याद रखांगे कित्थे देखा गया? उड़ीसा दे विच येलो टर्टल, उड़ीसा। नैक्सट है रीसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग मिनिस्ट्री किन्ना लवे? मनसुख लाल मंडाविया दे लवे। मनसुख लाल मंडाविया शिपिंग मिनिस्टर ने इन्हों द्वारा इनोग्रेट की गई पहली कंटेनर शिप, फर्स्ट कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट तो पहली कंटेनर शिप अगरतला के लिए, इतने स्पैलिंग मिस्टेक हो गई है, अगरतला के लिए चैटोग्राम पोर्ट तो इसनों लॉन्च किया गया। अपना क्वेश्चन है कि चैटोग्राम पोर्ट केड़ी कंट्री दे विच है? चैटोग्राम पोर्ट केड़ी कंट्री दे विच है? अगर किसी ने मैप देखा होगा काफ़ी ईजिली आंसर दस सकता है कि केड़ी कंट्री वैस्ट बंगाल कोलकाता और अगरतला के विचाले आएगी? बांग्लादेश। केड़ी कंट्री द्वारा किया गया? बांग्लादेश द्वारा चैटोग्राम पोर्ट तो बांग्लादेश के चैटोग्राम पोर्ट तो यूनियन मिनिस्टर शिपिंग
मनसुख लाल मंडाविया द्वारा इनोग्रेट किया गया। ठीक है जी, किन्ना द्वारा? मनसुख लाल मंडाविया द्वारा। इस तो इलावा नेपाल की गल करिए, पशुपति नाथ टैंपल के रिगार्डिंग इंडिया इन्वेस्टमेंट करन जा रहा है नेपाल दे विच। भूटान दे विच एक हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट लगाएगा इंडिया। इस तो इलावा भूटान के नाल इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है इन्वायरमेंट के रिलेटेड। इन्वायरमेंट के रिलेटेड एग्रीमेंट किसने नाल साइन किया है? भूटान के नाल। अगर म्यांमार की गल करिए, म्यांमार रिसेंटली न्यूज़ के विच सीगा। सब तो पहले इसकी कैपिटल है नई पई था। करंसी इत्थे क्या चलती है? विन मिंट। इत्थे दे प्रेजिडेंट ने न्यूज़ के विच ये रिसेंटली, अगर आप इस रिलेटेड कोई न्यूज़ याद करिए, तथमदाव, इत्थे दी मिलिटरी सी तथमदाव। इसने डिसाइड किया सी फेसबुक नूं यूज़ करना ताकि जिहड़ी इंफॉर्मेशन है प्रॉपर लोगों तक पहुँचाई जा सके। फेसबुक का यूज़ तथमदाव मिलिटरी द्वारा। म्यांमार की मिलिटरी सी तथमदाव, याद रखें। नेक्स्ट है a MOU was signed between CBDT Central Board of Direct Tax CBDT की गल करिए न्यू दिल्ली के विच हैडकुआटर है और इस तो इलावा इसके हैड ने PC मोदी CBDT के हैड ने। इसने किहड़ी मिनिस्ट्री के नाल एग्रीमेंट साइन किया? डाटा शेयर करने के लिए। बेसिकली डाटा शेयर करने के लिए किहड़ी मिनिस्ट्री के नाल CBDT ने एग्रीमेंट साइन किया? इसका आंसर होएगा MSME मिनिस्ट्री। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के नाल इसनूं शुरू किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री नितिन गडकरी लवे। नितिन गडकरी नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने, प्लस ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी ने। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने नितिन गडकरी। होम मिनिस्ट्री अमित शाह गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने। होम मिनिस्टर कौन ने? अमित शाह गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो। फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री देख रहे ने निर्मला सीतारमन राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो। HRD मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशांक हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री S जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर इन्हों का पूरा नाम है। S जयशंकर के नाम तो जाने जाते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने और यह राज्यसभा MP ने गुजरात तो सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 557 करोड़ रुपए साइन किए किस दे लई? इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया एक कंपनी के नाल। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक कंपनी के नाल। डिफेंस मिनिस्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश तो ने और राजनाथ सिंह, इन्हों का नाम है राजनाथ सिंह, इन्हों द्वारा साइन किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट 557 करोड़ का किस दे लई? 1512 माइन प्लोज के लिए फॉर T90 टैंक्स। तुसीं देखा होगा जो टैंक्स होंगे ने, ठीक है, हुण टैंक्स अगर सीधा जा रहे होंगे तो रस्ते अगर माइनस लगा दिए जान तो टैंक्स में नुकसान होएगा। ठीक है, तो माइन प्लोज होंगे ने कि अगर जी माइनस लगियां हुई ने उन्होंने पहले ही डिटैक्ट किया जा सके टैंक्स के अंदर बह के और फिर उन्होंने तो बचा भी जा सके। ठीक है, T90 टैंक्स के विच इंस्टॉल की जाएगियां। 557 करोड़ रुपए इस दे लई सैंक्शन किए गए। किस कंपनी के नाल इसनूं बनाया जाएगा? यानी कि इसनूं बनाया जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भारत अर्थ मूवर्स द्वारा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसका हैडकुआटर बेंगलोर दे विच है, कर्नाटका बेंगलुरु दे विच इसका हैडकुआटर भारत अर्थ मूवर्स का। भारत इलैक्ट्रॉनिक्स की गल करिए, भारत इलैक्ट्रॉनिक्स का हैडकुआटर भी कर्नाटका बेंगलुरु दे विच है। भारत डायनामिक्स का हैडकुआटर हैदराबाद दे विच है। तेलंगाना हैदराबाद दे विच है भारत डायनामिक्स। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका हैडकुआटर तो हर एक नूं पता होएगा भेल, शॉर्ट फॉर्म दे विच इसनूं भेल भी कहा जाता है, BHEL भेल। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है। DRDO की गल करिए, DRDO का हैडकुआटर भी न्यू दिल्ली दे विच है। इस दे बारे आप काफ़ी डिटेल दे विच भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार कि 1958 दे विच 1 जनवरी 1958 दे विच इसनूं बनाया गया सी। G सतीश रेड्डी इस दे हैड ने, न्यू दिल्ली दे विच इसका हैडकुआटर है। नैक्सट
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੰਟਰੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ 2020-2021 ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड किया गया। ठीक है जी, लो इनकम, लोअर मिडल इनकम, अपर मिडल इनकम और हाई इनकम। काफ़ी कंट्रीज इसनूं कैटेगराइज किया गया। अप्रोक्सीमेटली 200+ कंट्रीज सीगियां जिन्होंने क्लासीफाई किया गया डिफरेंट कैटेगरीज दे विच। और इंडिया लास्ट टाइम भी जो रैंकिंग रिलीज़ की गई सी वर्ल्ड बैंक द्वारा, इंडिया पहले भी लोअर मिडल इनकम दे विच सी और हुण भी इंडिया लोअर मिडल इनकम दे विच है। ठीक है, रैंकिंग किस द्वारा रिलीज़ की गई है? वर्ल्ड बैंक द्वारा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की गल करिए वाशिंगटन DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। 189 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਾशिंगटन DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ 13th ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। USA ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰਮਨ ਰੈਨਹਾਰਟ ਕੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਛਾ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਅੰਸ਼ੁਲਾ ਕਾਂਤ ਇਜ਼ ਦੇ MD ਐਂਡ CEO ਨੇ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ MD ਐਂਡ CEO ਕੌਣ ਨੇ? ਅੰਸ਼ੁਲਾ ਕਾਂਤ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾਲਜੀ ਟੰਡਨ ਪਾਸਡ ਅਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਲਜੀ ਟੰਡਨ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ? MP ਦੇ ਗਵਰਨਰ। ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ MP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲਾਲਜੀ ਟੰਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ MP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, MP ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ UP ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। UP ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ UP ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ MP ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MP ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ MP ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। MP ਕਾफ़ी ज़्यादा ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀਦੀ ਵਹੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਰਨ ਪਾਦੁਕਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਮਾਰਾ ਘਰ ਹਮਾਰਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾफ़ी ਹੋਰ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਰ MP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, MP ਕਾफ़ी ज़्यादा ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। FIR ਆਪਕੇ ਦਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ MP ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਦਯੁਤ ਮਿੱਤਰ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ MP ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ UP ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UP ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰਬਲ ਰੋਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ UP ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਹਤ ਮਿੱਤਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ UP ਦੁਆਰਾ। गोवा के चीफ मिनिस्टर अगर आप गल करिए प्रमोद सावंत ने और सत्यपाल मलिक इत्थे दे चीफ गवर्नर ने, गोवा के गवर्नर ने। गोवा द्वारा COVID-19 सर्टिफिकेट मैंडेटरी किया गया सी बॉर्डर्स दे विच एंटर करने के लिए। ये याद रखना है। वैस्ट बंगाल बंगाश्री छा सुंदरी मातृ समृष्टि स्कीम लॉन्च की गई सी वेस्ट बंगाल द्वारा। उड़ीसा की स्कीम्स आप कल डिस्कस कर चुके हैं, उड़ीसा की अज नहीं डिस्कस करेंगे। नैक्सट चलते हैं क्वेश्चन के वल। LIC हैज़ इंक्रीज्ड इट्स स्टेक टू what % in TVS Motors। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि TVS Motors दे विच LIC ने स्टेक बाय किया है। LIC ने स्टेक बाय किया है बाय परचेजिंग 95 लाख शेयर्स। 95 लाख शेयर बाय किए ने LIC ने TVS मोटर कंपनी दे विच। किन्ने परसेंट स्टेक? 3.3% स्टेक है जिहड़ा बाय किया गया किस द्वारा? LIC द्वारा बाय किया गया। इस तो इलावा अगर आप गल करिए LIC की लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन
LIC ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। LIC ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ LIC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ MR ਕੁਮਾਰ। MR ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ MR ਕੁਮਾਰ। ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3.3% ਸਟੇਕ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੈ TVS ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ who is appointed as joint secretary in prime minister office PMO। PMO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PMO ਦੇ ਵਿੱਚ joint secretary ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? joint secretary PMO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? PMO ਦੇ ਵਿੱਚ joint secretary ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ P ਅਮੂਦਾ ਫੀਮੇਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ joint secretary ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ PMO ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। S ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ PMO ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਤੋਂ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੂਨ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ S ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ S ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ PMO ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੀਵ ਤੋਪਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਤੋਪਨੋ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਤੋਪਨੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੀਵ ਤੋਪਨੋ IAS ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਤੋਪਨੋ। ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਔਰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ। P ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਧਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ P ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਧਾਰਥ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? P ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਧਾਰਥ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ who has emerged as highest paid banker। ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਔਰ ਅੱਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਬੈਂਕਰ 18.92 ਕਰੋੜ ਸੈਲਰੀ यानी कि अप्रोक्सीमेटली 19 करोड़ रुपीज़ की सैलरी इन्हों की हाईएस्ट पेड बैंकर बने ने। हाईएस्ट पेड बैंकर बने ने। कितनी सैलरी है? 18.92 करोड़ सैलरी किन्हों दी गई है? यह सैलरी आदित्य पुरी नूं। आदित्य पुरी HDFC बैंक के MD ने। HDFC बैंक के MD ने आदित्य पुरी और यह की ने हाईएस्ट पेड बैंकर बने ने 18.92 करोड़ सैलरी के नाल। अगर रजनीश कुमार की गल करिए, रजनीश कुमार SBI के चेयरमैन ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने रजनीश कुमार। प्रशांत कुमार MD एंड CEO ने येस बैंक के MD एंड CEO कौन ने? प्रशांत कुमार। इस तो इलावा अश्वनी तिवारी की गल करिए। अश्वनी तिवारी अच्छा कल ही डिस्कस किया था अपने नाम अश्वनी कुमार तिवारी। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज दे MD अपॉइंट किए गए ने। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज दे MD अपॉइंट किए गए ने अश्वनी कुमार तिवारी। नैक्सट है ऑडिट रेगुलेटर नैशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA। अगर तुसी कॉमर्स तो बिलोंग करते हो तुसी इस चीज़ बारे पक्का सुनिया होएगा। NFRA की है? नैशनल फाइनेंसिंग रिपोर्ट अथॉरिटी। इस द्वारा एक टैक्नीकल कमेटी बनाई गई है। टैक्नीकल कमेटी किस दे लिए बनाई गई है? टू गिव एडवाइस टू NFRA नू एडवाइस देने दे लई ऑन द इशूज़ रिलेटिंग टू ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए बेसिकली अगर कह सकते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उन्हों की ड्राफ्टिंग के लिए यानी कि उन्होंने बनाने के लिए NFRA नू जिहड़े इशूज़ होंदे ने उन्होंने कह सकते हैं भी सॉल्व करने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए
NFRA ने कमेटी बनाई, इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? इस कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए ने आर नारायणा स्वामी। आर नारायणा स्वामी, आर नारायणा स्वामी प्रोफैसर ने IIM बेंगलोर दे विच, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर दे विच प्रोफैसर ने आर नारायणा स्वामी, इन्हां नूं इस कमेटी का हैड अपॉइंट किया गया, इस कमेटी का हैड अपॉइंट किया गया। याद रखना। इस तो इलावा अगर बाकी ऑप्शंस आप डिस्कस करिए, जी कृष्णा रेड्डी, कल भी इन्हों का नाम आप डिस्कस किया सीगा, डिप्यूटी होम मिनिस्टर ने, और इन्हों द्वारा फ्रीडम फाइटर्स कमेटी नूं हैड अपॉइंट किया गया, इन्हों नूं फ्रीडम फाइटर्स कमेटी का हैड अपॉइंट किया गया। तेलंगाना हैदराबाद तेलंगाना तो लोक सभा MP ने। अदीले सुमनरीवाला नूं अपॉइंट किया गया सी इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा, इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा एनुअल ग्रांट्स और फीस दी रेगुलेशंस दे लई कमेटी बनाई गई सी, उसके हैड अपॉइंट किया गया सी अदीले सुमनरीवाला। बेसिकली आई थिंक ये प्रेसिडेंट ने एथलैटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने। SCL दास और BP कताके। एक आप न्यूज़ डिस्कस की सी कि असम के ਬੰਜਮ ऑयल वैल ਦੇ ਵਿੱਚ, असम के ਬੰਜਮ ऑयल वैल ਜਿਹੜਾ कि असम के ਤਿੰਨਸੁਕੀਆ डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ है, असम के ਤਿੰਨਸੁਕੀਆ डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਜਮ ऑयल वैल है, इस दे विच अग लग गई सी। ठीक है जी, इस दे लई जिहड़ी अग लग गई सी, इस दे विच सब तो पहले एक कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई गई 3 मैंबर कमेटी, जिसके हैड अपॉइंट किए गए SCL दास। उस तो बाद NGT द्वारा एक कमेटी बनाई गई, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा उसे असम के ਬੰਜਮ ऑयल वैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ उसनू ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बनाई सी, उसके हैड अपॉइंट किए गए सी BP कताके। ठीक है जी, SCL दास नू अपॉइंट किया गया सी गवर्नमेंट द्वारा, और NGT नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा BP कताके। नैक्सट है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020। अगर आप गल करिए क्रिकेट फैंस के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है कि जो ICC मेंस वर्ल्ड कप सीगा, T20 वर्ल्ड कप सीगा, मैन वर्ल्ड कप, इसनू पोस्टपोन कर दिता गया 2 सालों के लिए कोविड-19 के कारण। इसनू काफ़ी टाइम तो पोस्टपोन करते आ रहे हैं। अगर आप गल करिए इसनू बेसिकली आई थिंक मार्च अप्रैल के हैल्ड किया जाना सी, और इसनू पोस्टपोन करते करते अक्तूबर नवंबर से लिया गया सी कि अक्तूबर या नवंबर के इसनू हैल्ड किया जाएगा, और हुण फाइनली इसनू 2022 के लिए पोस्टपोन किया गया 2022 के लिए। इसनू केड़ी कंट्री होस्ट करेगी? इसनू होस्ट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया द्वारा। केड़ी कंट्री होस्ट करेगी? ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप नू होस्ट करेगी। ठीक है, इस तो इलावा ICC के जिन्हें इवेंट्स ने वो भी आप डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा पहले कुछ न्यूज़ डिस्कस कर लें। सब तो पहले जिमें बांग्लादेश, एक न्यूज़ आप हुणे डिस्कस करके हटे हैं बांग्लादेश के रिलेटेड कि बांग्लादेश के पोर्ट तो मनसुख लाल मंडाविया द्वारा शिप इनोग्रेट किया गया। इस तो इलावा बांग्लादेश ने इंटरनेट सर्विसिज नू, फ्री इंटरनेट सर्विसिज नू सोशल मीडिया के उत्ते बैन कर दिता है। सोशल मीडिया ते यूज़ करने वाला फ्री इंटरनेट सर्विसिज नू बैन किया गया बांग्लादेश द्वारा। फ्रांस की गल करिए, 2 चीज़ां करके न्यूज़ दे विच सीगा, दोनों न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट ने। अगर आप गल करिए रफाल के बारे सुनिया होगा, रफाल डील की गई सी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा दे विच रही सी, करप्शन चार्जिस भी लगाए गए सी रफाल डील के उत्ते। रफाल डील याद रखनी है, एयरक्राफ्ट ने रफाल किहड़ी कंट्री तो लिते जाएंगे? फ्रांस तो लिते जाएंगे। और रीसेंटली अनाउंस किया गया है कि जोड़े 5 रफाल ने, सब तो पहले 5 रफाल इंडिया को 29 जुलाई तक दे दिते जाएंगे। 29 जुलाई तक 5 रफाल दे दिते जाएंगे। इंपोर्टेंट बनेगा कि इन्हों रखा कित्थे जाएगा? अंबाला दे विच, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन अंबाला, एयरफोर्स स्टेशन अंबाला दे विच इन्हों रखा जाएगा। ठीक है, डिप्लॉय किया जाएगा, याद रखना। दूसरी चीज़ फ्रांस के रिलेटेड, फ्रांस का फुटबॉल ओनर है, फ्रांस का एक फेमस फुटबॉल ओनर बैलन डी और रिसेंटली अगर आप गल करिए लियोनल मैसी नूं दिता गया सी, अपने डिस्कस किया सीगा, तो बैलन डी और जिहड़ा अवार्ड है फ्रांस का इस साल के लिए कैंसल किया गया। इस साल किसी नूं भी फ्रांस का हाई एक ओनर है फुटबॉल ओनर बैलन डी और, यह अवार्ड नहीं दिते जाएंगे इस साल के लिए 2020 के लिए, याद रखना। इस तो इलावा कतर के रिलेटेड एक न्यूज़ सी, कतर रिलेटेड की न्यूज़ सी, फीफा वर्ल्ड कप
FIFA वर्ल्ड कप 2022 FIFA वर्ल्ड कप जिहड़ा 2022 ਦਾ है इसका वैन्यू है कतर, दोहा कतर, और इसका जिहड़ा स्टेडियम है वो अनाउंस कर दिता गया अल बयात स्टेडियम दे विच हैल्ड किया जाएगा। अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा स्टेडियम का नाम कि अल बयात स्टेडियम दे विच FIFA वर्ल्ड कप 2022 हैल्ड किया जाएगा। वैस्ट इंडीज़ की गल करिए, रिसेंटली न्यूज़ दे विच सीगा क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट टूरनामेंट करके ही कि जिहड़ा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच कोविड-19 तो बाद खेलिया गया वो किहड़ी दो कंट्रीज़ दे विच खेलिया गया, वैस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड दे विच। कित्थे खेलिया गया? इंग्लैंड के एक स्टेडियम दे विच। स्टेडियम का नाम कमेंट बॉक्स में दसना है। और किहड़ी कंट्री ने जितया? वैस्ट इंडीज़ ने। वैस्ट इंडीज़ ने वो मैच जित लिया सी। ICC के जोड़े ईवेंट्स ने वो आप डिस्कस कर लें। सब तो पहले ICC का जो फर्स्ट ईवेंट है वो 50 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप है, मैनस और वूमेंस का। एक ईजी ट्रिक के नाल याद करांगे कि जो मैनस वर्ल्ड कप और वूमेंस वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वाला है। मैनस 2023 दे विच होएगा और वूमेंस वाला होएगा 2021 दे विच। मैनस वाला इंडिया होस्ट करेगा और वूमेंस वाला न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। ठीक है जी। उस तो बाद अंडर 19 वाले, अंडर 19 वर्ल्ड कप है, अंडर 19 मैनस और वूमेंस। अंडर 19 मैनस है जो 2020 दे विच हैल्ड किया गया साउथ अफ्रीका दे विच, और 2021 दे विच अंडर 19 वूमेंस वर्ल्ड कप बांग्लादेश होस्ट करेगा। ठीक है जी। ये साउथ अफ्रीका दे विच हैल्ड किया जा चुका है, इसमें जितया आई थिंक बांग्लादेश ने सीगा और इंडिया इस दे विच रनर अप रहा सी। नैक्सट है हुणे आपां डिस्कस किया मैनस T20 और वूमेंस T20 दोनों नूं ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। वूमेंस T20 हैल्ड किया जा चुका है जिसनों ऑस्ट्रेलिया ने ही जितया सी इंडिया नूं हरा के, और मैनस T20 वर्ल्ड कप नूं 2022 के लिए पोस्टपोन कर दिता गया। इस तो इलावा नैक्सट आ गया अपना T20 मैनस और वूमेंस। T20 मैनस और वूमेंस 2021 का और 2022 का। 2021 ICC मैनस T20 वर्ल्ड कप है जिहड़ा यह इंडिया होस्ट करेगा, और 2022 ICC वूमेंस T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। कौन होस्ट करेगा? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है हु हैज़ इनोग्रेटेड जोरम मेगा फूड पार्क एट कोलासिब मिजोरम। मिजोरम की गल करिए, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने P जोरमथांगा। सिमिलर तरीके का नेम है जोरम मेगा फूड पार्क। मिजोरम का पहला फूड पार्क जोरम मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया कोलासिब मिजोरम दे विच। कोलासिब मिजोरम दे विच इसनूं इनोग्रेट किया गया हरसिमरत कौर बादल द्वारा। फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही इसनूं इनोग्रेट किया गया। बठिंडा पंजाब तो लोक सभा MP ने, बठिंडा तो लोक सभा MP ने हरसिमरत कौर बादल। इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गल करिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने, और यह रिसेंटली न्यूज़ के विच सीगे कि इन्हों के जो ट्विटर के उत्ते 60 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, और यह वर्ल्ड के टॉप फेवरेट लीडर ने। ट्विटर के उत्ते वर्ल्ड के टॉप फेवरेट लीडर कौन ने? नरेंद्र मोदी। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए जितेंद्र सिंह की, जितेंद्र सिंह अपने डोनर मिनिस्टर ने। डोनर मिनिस्ट्री इन्होंने लवे उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP ने। इन्होंने इनोग्रेट किया, लॉन्च किया कह सकते हैं PM अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस। PM अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विच PM अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किए गए जितेंद्र सिंह द्वारा। ठीक है जी। बेसिकली इस दे विच उन्हां ऑफिसर्स नूं कह सकते हैं ऑनर दिता जाएगा जिन्होंने नमामि गंगे प्रोग्राम दे विच, नमामि गंगे प्रोग्राम दे विच कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है। नरेंद्र सिंह तोमर पंचायती राज मिनिस्टर ने, पंचायती राज मिनिस्टर ने, एग्रीकल्चर वेलफेयर मिनिस्टर ने, प्लस रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन्होंने मोरियाना मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने। रामविलास पासवान की गल करिए, रामविलास पासवान कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर ने। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर ने फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ने। राज्य सभा MP ने है बिहार तो राज्य सभा MP ने। ठीक है जी, ये याद रखना है। अच्छा, हरसिमरत कौर बादल रिसेंटली न्यूज़ के सीगे, इन्होंने PMFME स्कीम भी लॉन्च की थी। PMFME स्कीम, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसैसिंग एंटरप्राइजेस, समथिंग इस तरीके की एक स्कीम सी लॉन्च की गई सी। इन्होंने बठिंडा पंजाब तो ही लॉन्च की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही। PMFME
ਸਕੀਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।